Hello. Hello. Yes, sir. Good. Good morning, sir. So today we are going to discuss some more questions of the exercise. कल जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे आप आपको ये अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं? आरती, हेलो. सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन बता दो। हाँ, क्या बताते बेटा? फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ ओके. द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So since we know the tower is represented by vertical line, suppose this is a tower and here is a ground. ये आपका सपोज क्या है? टावर. ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड लाइन को, ओरिएंटल लाइन. Then he says that the angle of elevation of the top of tower means this is the top of tower. The angle of elevation of this top of the tower from a point on the ground. तो इस ग्राउंड पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए. सपोज यहां आपने पॉइंट ले लिया ए. यू हैव टू टेक दिस पॉइंट at some distance from this tower to draw the figure. So from this point on the ground, the angle of elevation of the top of tower is given and it is 30 degree. And also he says that from a point on the ground, and this point is 30 meter away from the foot of the tower. This is foot of tower and the point is there. So it means this distance is given 30 meter. If you name this right triangle, suppose ABC, then BC is the height of the tower in this figure. AB is the distance of the point on the ground from the foot of tower, and AC is the line of sight. And the angle between line of sight and the ground or horizontal level is called angle of elevation. So now in this question we have to find out the height of tower, that is BC. तो अगर आप सपोज करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सपोज नहीं भी करते तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं इन राइट ट्रायंगल एबीसी हाइट ऑफ द टावर आप फाइंड करना चाहते हैं, मींस बीसी divided by the given side 30. But when we see this figure, we conclude that this is the perpendicular of the right triangle. Here is the base and AC is the hypotenuse. It means आपने perpendicular upon base लिया है और perpendicular upon base किसकी रेशो के इक्वल होता है 10 and the angle is given 30 degree. So it means BC upon 30 is equal to 10, 30 के इक्वल होगा. From here you can solve this equation. BC divided by 30 is equal to 10 30, that is 1 by root 3. 10 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 1 by root 3 implies BC अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, you get 30 by root 3. Or if you rationalize this, then
30 root 3 divided by 3, you will get 10 root 3 meter. 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा. So then this is the height of the tower. Is it clear? Yes, sir. Now we are going to the next sums. Exercise 9.1, question number 6. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करके उसके लिए फिगर ड्रॉ करनी पड़. फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको कहा है ग्राउंड या रोड, इसको जो है आप हॉरिजॉन्टल लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड द ऑब्जेक्ट विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन. तो इन क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. यानी एक बिल्डिंग है, this is the building suppose, height of this building is 30 meter and this is the ground line suppose. अब लेफ्ट साइड में आप ग्राउंड लाइन लेते हैं, राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The angle between these two is 90. A boy is supposed standing here. 1.5 meter is the height of the boy, which is standing at some distance from a 30 meter height tower. And name of this point is suppose A, name of this point is B, and this is C. So at point C, this is the top of building. Similarly, point B is the base or foot of the building. Now, because this is the height of the boy, which is seeing the top of building, clearly question says that the angle of elevation from his eyes, यानी बॉय की आई ये होगी कहाँ, इसको आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट. एंड दिस लाइन ऑफ साइट का एंगल हॉरिजॉन्टल से लेना है. तो पॉइंट ए बी सी, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने डी दे दिया, तो पॉइंट डी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी पहले आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, विच इज पैरेलल टू द बेस. यानी जिस ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है, नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नंबर दो लाइन ऑफ साइट. देन द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज द angle of elevation, and the question says the angle of elevation from his eyes to the top of building increases 30 degree to 60 as he walks towards the building. यानी ये angle of elevation 30 degree है, but the students या boy when walk towards the building, ये boy यहाँ से अगर building की तरफ move करता है, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, this is the second position of the boy, यहां से चलता हुआ यहां पहुंच गया, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज एंड इट बिकम्स 60 डिग्री. तो बाय रीडिंग दिस क्वेश्चन वी आर एबल टू ड्रॉ दिस फिगर. एक बार फिर से समझिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये आपने 1.5 मीटर टॉल बॉय मानना है. अब स्पष्ट ये बॉय जो स्टैंड करेगा किस पर, ग्राउंड लाइन पर, यानी ग्राउंड लाइन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री. तो पॉइंट डी पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है और लाइन ऑफ साइट भी. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म. व्हेन दिस बॉय AD मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल 30 डिग्री इज इंक्रीजेस टू 60. तो दिस इज द पोजिशन. सपोज इसका आपने नाम दे दिया E और ये दे दिया F. तो B से AB पोजीशन से बॉय पहुंच गया E F
EG पर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री. नाउ यू हैव टू राइट ट्राइंगल इन दिस फिगर. वन इज EFC एंड सेकंड इज DFC. इन दो राइट ट्राइंगल्स को आप यूज करेंगे और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की है, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है. ए से जी तक कह दीजिए या डी से ई तक, एक ही बात. तो आपको ये फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में टू फाइंड करना है BE. ये और यू कैन से AG, एक ही बात. तो आप सॉल्यूशन में पहले आप एक राइट ट्राइंगल लिखते हैं. सपोज EFC. इन राइट ट्राइंगल EFC, CF जो है आपके पास गिवन है. CF क्या होगा, यहां से 30 मीटर हाई बिल्डिंग है यानी टोटल हाइट 30 है यहां तक, लेकिन हमें CF चाहिए यानी ये डिस्टेंस चाहिए. तो ये होगी 28.5 यहां तक, क्योंकि इस टोटल हाइट 30 में से ये हाइट जो बॉय की है 1.5 मीटर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है. पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, इसलिए CF जो है डिस्टेंस ये आपके पास आएगी 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर. नाउ इन राइट ट्राइंगल EFC, one side is known, one acute angle is known, we can apply the P ratios. क्या यूज करें आप, या तो P अपॉन B यानी CF अपॉन EF यूज कर सकते हैं. CF अपॉन EF जनरली ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई विल टेक P अपॉन B. अब जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सब में मोस्ट प्रॉब्लम मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा. तो यहाँ CF इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, EF बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के इक्वल होगा. और CF आपने फाइंड किया हुआ है, ये रहा 28.5. EF आप फाइंड करना चाहते हैं tan 60 डिग्री, यहाँ एंगल है इसका मतलब EF यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. EF आपके पास आ गई 28.5. EF को यहाँ ले जाइए, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वो यहाँ ले आइए, यानी ये यहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं आप EF और tan 60 को. तो EF आपके पास इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3. 3 से कैंसिल, 9.5 √3. तो ये आपके पास 9.5 √3 EF डिस्टेंस आ गई. 9.5 √3 मीटर EF डिस्टेंस आ गई. अब आप राइट ट्राइंगल लीजिए DFC. एक्चुअली इस फिगर में 3 ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEC, DFC और EFC. लेकिन इन 3 ट्राइंगल में से जो ट्राइंगल DEC है वो राइट ट्राइंगल नहीं है, इसलिए इसमें T रेशो का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते. तो ये आपने फाइंड कर लिया. ऑल्सो यही फॉर्मूला इन राइट ट्राइंगल DFC में हम अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर इसमें भी DCF ही है यानी 28.5, लेकिन बेस इसमें है DF. तो 28.5 अपॉन DF इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन इस ट्राइंगल का है 30 डिग्री. इट मींस यहां से 28.5 अपॉन DF इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से DF आएगा 28.5 √3 मीटर. लेकिन आप फाइंड करना चाहते हैं DE,
तो डी फाइंड कब करेंगे, जब डी एफ में से आप ई एफ माइनस कर देंगे। तो ई एफ आप निकाल चुके हैं, ये रहा, ये आपने डी एफ फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर या हेंस डीई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 19 रूट 3 मीटर। ये वो डिस्टेंस होगी जो बॉय ने क्या की है, ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो दैट दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया बेटा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? Sir. Yes, sir. Clear? Okay. Now we are going to our next question. तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी होगी। नंबर वन, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, रीड करके उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। जिसका फिगर करेक्ट ड्रॉ हो गया इसका मतलब उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जब फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास दो राइट ट्रायंगल होंगे उस फिगर में, उन दोनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, P अपॉन B इज इक्वल टू tan थीटा। यानी इन ईच एंड एवरी केस आई एम जस्ट using the formula perpendicular upon base is equal to tan theta. Question number 7 जैसे from a point on the ground. So suppose you are taking this ground line and point is this on ground. ये आपने point ले लिया ground पर। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower फिक्स्ड एट, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, ट्रांसमिशन टावर के फुट और टॉप का। आगे इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दिस ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सपोज दिस इज आवर बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है 20 मीटर हाई। इसके ऊपर एक टीटी ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। तो टीटी ट्रांसमिशन टावर ये है सपोज, और इसकी हाइट फिर ये हुई यहां से लेकर यहां तक। दिस इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इस ट्रांसमिशन टावर का बेस ये होगा और ये टॉप होगा। So he says that the angle of elevation first from a point on the ground. So we are just taking the point on the ground is A. From this point A, the angle of elevation of the bottom, यानी base या bottom एक ही बात। So the angle of elevation from a ground to the bottom of the tower, and similarly the angle of elevation from the same point of the top of the transmission tower are respectively 45 degree and 60. यानी this angle is 45 degree and this complete angle is 60 degree. Find the height of the transmission tower. हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। उसके लिए राइट ट्रायंगल का सपोज ए, दिस इज द नेम बी, here is point C and here is D. So again there are two right triangles ABC in this figure and ABD. Third triangle ACD is not a right triangle, so we do not consider it. तो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करनी है आपको हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ टीटी ट्रांसमिशन टावर
और इस फिगर में अगर ट्रांसमिशन टावर की हाइट देखें तो सी डी है, इक्वल टू आपने सपोज कर लिया एच मीटर। अगर आप सी डी एच मीटर नहीं सपोज करते तो सी डी को सी डी रख दीजिएगा। सपोज मैंने सी डी को एच सपोज कर लिया और एक भी डिस्टेंस को मैं कर लेता हूं एक्स। तो फिर इससे फायदा क्या होगा कि मुझे ए बी सी डी ई एफ ये नहीं लिखना होगा, उसकी जगह मैं एच या एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यानी व्हेन आई टेक राइट ट्राइंगल ए बी सी, perpendicular of this right triangle is BC, that is 20 meter, divided by base AB, which is x supposed by you. It means 20 by x is equal to the angle of elevation of this right triangle 45, tan 45 degree. So from here 20 upon x is equal to tan 45, that is 1, implies x is equal to 20 meter. It means x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, या आप ये फाइंड कर चुके हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग आपने फाइंड कर लिया। सेकंड, ऑल्सो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, if you are taking the right triangle ABD, then perpendicular of this right triangle is BD. तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा 20 प्लस इसकी हाइट आपने एक्सपोज कर रखी है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपके पास 20 प्लस एच। अनीस क्लियर बेटा? ABD राइट ट्राइंगल लगी 20 प्लस एच, अगेन डिवाइडेड बाय बेस यानी x is equal to tan, and the angle of this triangle is this, that is 60 degree. It means from here 20 plus h divided by x is equal to tan 60, that is root 3, implies the equation becomes 20 plus h is equal to x root 3. This is the equation number 2. And from first right triangle the equation comes x is equal to 20. इसका मतलब इस x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड। you will get 20 plus h is equal to x 20 root 3. x की वैल्यू 20 थी, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया मैंने 20 से, 20 root 3 implies the value of h becomes 20 root 3, and this 20 is transferred from left to right, it will becomes minus. It means the height of the tower is 20 bracket root 3 minus 1 meter. This is the answer. तो रूट की फॉर्म में आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको दी हुई होगी रूट 3 की वैल्यू। हम जानते भी हैं रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेते हैं तो, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो 1.73। तो यहाँ चाहे तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी हुई नहीं है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू ये है तो आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आंसर रूट में ही छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. मुकुल क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अंजलि बेटा ज्वाइन कर रखा है क्लास को या नहीं? अंजलि तो ये क्लियर है, तो आप समझ गए हैं कि आपके पास फिगर ड्रॉ करना है आपने करेक्ट। अगर फिगर करेक्ट ड्रॉ हो गया तो उसके बाद नो प्रॉब्लम टू सोल्व द क्वेश्चन। Suppose now question number
10 तक कम से कम आज आप 10 12 तक आज कर लेते हैं, फिर कल इसको फिनिश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। सपोज क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू कॉमा, स्टैचू के बाद लगा हुआ है कॉमा, इसका मतलब स्टैचू कहां पर है, आगे लिखा हुआ होगा 1.6 मीटर टॉल, ये इसकी हाइट है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of pedestal. यानी suppose again ये ग्राउंड लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी से। इस पॉइंट बी पर एक पेडेस्टल बना हुआ है ऐसे, एक प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्या है, स्टैचू, ये इसके ऊपर स्टैचू, इसको तो ए बी इज द ग्राउंड लाइन, इसको आप देखें तो ये राइट ट्रायंगल, दिस इज द पेडेस्टल, इसका मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल सिर्फ ये हुई, यहां से लेके यहां तक की हाइट। इस पॉइंट को आप सपोज सी कह देते हैं, ये डी। तो नाउ फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर, ए बी रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड लाइन, बी सी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ pedestal and CD is the height of the statue. तो स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल, इसका मतलब इसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। ये हाइट कौन सी दी हुई है, CD, स्टैचू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर टॉल। Stand on the top of pedestal, the statue is on the top of the pedestal. From a point on the ground, we are taking the point on ground is a the angle of elevation of the top of the statue. This is the top of statue and here is the point on ground. If you join these, this angle is given 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of statue, the top of pedestal. Top of pedestal है point C. It means इसको ज्वाइन करेंगे अगर आप, तो ये जो एंगल है आपके पास होगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। तो अगेन you have two right triangles, right triangle ABC and right triangle ABD. In this question we have to find the height BC. So let height of pedestal BC, हाइट को आपने सपोज कर लिया h मीटर, एंड AB आपने सपोज कर ली x मीटर, यानी ये आपने x मीटर सपोज कर लिया, ये h हाइट। देन अप्लाई द फॉर्मूला इन राइट ट्रायंगल ABC. If you are taking the right triangle ABC, then BC is the perpendicular of this right triangle divided by base x. It means आपके पास इक्वेशन आएगी h upon x is equal to tan 45 degree. But the value of tan 45 is 1. It means h upon x is equal to 1, or you can say h is equal to x. This is the equation number first. When you take one right triangle, one equation is formed. Please उस equation को form कीजिएगा. Now we take the second right triangle ABD. So now in right triangle ABD, now perpendicular is this BD, that is h plus 1.6.
यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय यानी बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 को रिप्लेस करें इसकी वैल्यू से तो इट विल बिकम h प्लस 1.6 इज इक्वल टू x रूट 3, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट x. Why? Because we want to find just the value of height of statue. Height of statue CD दी हुई है आपको 1.6, height of pedestal h फाइंड करनी है। तो यहाँ आप h निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू x रूट 3। x को रिप्लेस कर देंगे h से तो इट विल बिकम h रूट 3। नाउ h को सेपरेट करेंगे, जो लेफ्ट में h है इसको मैं राइट में सपोज ले जा रहा हूं, इट विल बिकम माइनस h, और ये h अगर आप कॉमन ले तो आपके पास आ गया रूट 3 माइनस 1 और लेफ्ट साइड में 1.6। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन h इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। h की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 3 माइनस 1 जो इसका मल्टीप्लायर है उसको आप डिवाइड में ले जाएंगे, और इसे अब आपको रैशनलाइज और करना होगा। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 3 माइनस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। तो फ्रॉम हेयर h की वैल्यू जो आपके पास आई 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, बिकॉज रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी से इट विल बिकम 3 माइनस 1, और फ्रॉम हेयर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल विच वी रिक्वायर। सिंपली आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चंस को रीड करके यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ट्रायंगल इन दैट फिगर, अप्लाई always perpendicular upon base is equal to 10 in all those questions which have two figures. जनरली सभी उन क्वेश्चंस में जिनके अंदर दो फिगर्स हैं, दो राइट ट्रायंगल हैं, दो राइट ट्रायंगल के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये कि फॉर्मूला अप्लाई कर रहे p अपॉन b इज इक्वल टू 10। फर्स्ट राइट ट्रायंगल से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड से सेकंड बनाएंगे, इसके बाद दो इक्वेशंस में से एक अननोन टर्म आपको दी हुई होगी। अगर दोनों अननोन है तो आप उन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जिसको एलिमिनेट करना है, जैसे यहाँ आपको हाइट फाइंड करनी थी पेडेस्टल की, तो इसको हाइट फाइंड करनी है तो एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन में से दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दें। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं या सेकंड से फर्स्ट में, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। जनरली वी टेक द सिंपलेस्ट इक्वेशन, फ्रॉम हियर वी कैन सी इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्स की वैल्यू है वो सिंपल है, इजी है, सब्स्टिट्यूट करनी सेकंड में। सेकंड में से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट into equation second, and after that you have to solve that equation to find the value of h, height of the pedestal. So this is the method to solve these questions. Now I think it is more clear to you. समझ गए बेटा? हेलो, अब कुछ ज्यादा समझ में आया होगा आई थिंक। नाइस बेटा, आर यू लिसनिंग मी? सो नेक्स्ट, अब आप इन क्वेश्चंस को
हाँ? टेस्ट के लिए टेस्ट टेस्ट के लिए बोल रहा था बेटा, टेस्ट आपको शाम को दिया जाएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ चैप्टर कंप्लीट करके फिर एक बार पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि रिवाइज करिए पहले, आप आगे बात ज़्यादा बढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर इससे रिलेटेड है। तो सभी को ये ध्यान रखें कि आज कल ये कंप्लीट 9th चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर एक दिन रिवाइज करेंगे, अगले दिन उसका टेस्ट, एक दिन रिवाइज करेंगे उसका टेस्ट, कंटिन्यूस पहले 9 चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। और इसी मंथ में ये रिवीजन भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को पहले चैप्टरों में प्रॉब्लम है तो वो फर्स्ट चैप्टर से दोबारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम, तो इससे आपके टेस्ट भी हो जाएंगे और वो भी। इज इट क्लियर टू यू? सुन रहा है बेटा? यस सर। तो अभी आज और कल कल ये चैप्टर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें आगे नहीं पढ़ाना है अभी, जब तक हम 5-6 चैप्टरों के टेस्ट ना ले लें। और टेस्ट कैसे होंगे, एक दिन मैं रिवाइज कराऊंगा, उसमें भी बीच में ओरल टेस्ट आपसे बीच में पूछता रहूंगा क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट डे उसका रिटर्न टेस्ट होगा। और जनरली इस बार टेस्ट जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट बना के दे दिया जाएगा आपको। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, उसमें तो ओरल टेस्ट भी चलते रहें, और सब्जेक्टिव का मैं आपको टाइम दूंगा 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे, उसमें आप करके और भेज देंगे। उसका टाइम लिमिट फिक्स कर देंगे हम ऐप में। क्लियर? तो पहले ये चैप्टर, क्योंकि अगर बीच में आपने छोटा रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। एंड तो आज आप 10-12 क्वेश्चन तक मुझे लगता है कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें सेपरेट आप कहेंगे डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सीरियल से इसीलिए करा रहा हूँ। इन ईच क्वेश्चन यू विल सी दैट द मेथड इज सेम। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। अगर आपका फिगर ड्रॉ करेक्ट हो गया, इट मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, ठीक है? ओके सर। तो बेटा आज आप 12-13 क्वेश्चन जितने भी आपसे होते हैं ये कर लीजिएगा। कल जो 2-3 क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के हैं जिनमें कुछ सेपरेट कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, एक्चुअली तो कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज मैंने 3-4 क्वेश्चन से इसीलिए 2-2 ट्रायंगल वाली कराए कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो। ओके, ओके सर। आज आप अपना बेटा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। थैंक यू। हेलो अनीस, काम कर लियो?